Good morning, children. Let's continue 19th chapter in EVS. Our friends, animals. The children in the class were startled on hearing the sound tug. The sound came from the ceiling fan. Kalyani shouted, "Look, look, a bird is hurt." Peter got up at once and picked up the bird. It was in pain. Navjot and Ali quickly brought water in a bowl. Peter lovingly petted the bird. They held the bowl to the bird's beak. It drank a little water and slowly started flapping its wings. Navjot told all the children to move back. They noticed that the bird was trying to fly. In a while, the bird flew away. Now I'll explain it. हमारे दोस्त जानवर। थोड़े बच्चे क्लास में बैठे हुए थे। अचानक से उनको एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर वो चौंक जाते हैं कि ये आवाज़ आ रही है कहाँ से। तभी उन्हें ये पता चलता है कि ये आवाज़ आ रही है सीलिंग फैन की ओर से। कल्याणी अचानक से ज़ोर से आवाज़ देती है और कहती है, देखो देखो, वहाँ पर एक पंछी को चोट लगी है। पीटर जल्दी से खड़ा हो जाता है और उसकी ओर चला जाता है। वो उसको उठाता है। वो पंछी बहुत ही दर्द में था क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी। नवजोत और अली जल्दी जाकर एक बाउल में पानी लाते हैं। पीटर उस पक्षी को सहलाता है और जिस बाउल में उसने पानी लाया था वो उसकी चांच की ओर ले जाता है। वो पंछी धीमे धीमे पानी पीता है और जैसे वो पानी पीता है वो अपना पंख फड़फड़ाने लगता है। तभी नवजोत उन थोड़े बच्चों को कहता है कि आप थोड़ा दूर हट जाओ, क्योंकि उसे ये एहसास होता है कि वो पंछी उड़ने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर के बाद वो पंछी उड़ जाता है। देखो उसके हाथ में कैसे है वो पंछी, दर्द से आँख बंद किए हुए। फिर जैसे ही वो पानी पीता है तो फड़फड़ाते हुए उड़ने लगता है। Next day, the children saw a bird circling above them in their classroom. The children tried to find out whether it was the same bird that was heard the previous day. They quickly switched off the fan and started to clap. दूसरे दिन वो फिर से देखते हैं कि पंछी ऊपर गोल गोल घूम रहा है। क्लास के रूम वो घूम रहा था। तभी बच्चे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कल वाला ही पंछी है जिसे चोट लगी थी। वो तुरंत ही जाकर फैन का स्विच ऑफ कर देते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। Shankar was very happy. A cat had given birth to 4 kittens in the courtyard of his house. He started spending his time with them. One morning, Shankar was woken up by the cat's cry. Do you know how a cat cries? He ran towards the courtyard. He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. One of the kittens was missing. He went outside and found Malini
petting a kitten. Shankar called Malini into his courtyard. Malini saw the cat crying. शंकर बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया था और वो उसके घर के कोर्टयार्ड में था। वो जब भी उसे समय मिलता तो वो उनके साथ जाकर समय बिताता। एक सुबह शंकर अचानक से उठ जाता है क्योंकि उसे बिल्ली की रोने की आवाज़ आती है। तभी वो दौड़ते हुए कोर्टयार्ड में जाता है तो दिखता है कि बिल्ली रो रही थी और उसके 3 बच्चों को सहला रही थी। उनमें से एक छोटी बिल्ली गायब थी। तभी वो दौड़ते हुए बाहर जाता है तो दिखता है कि मालिनी एक बिल्ली को सहला रही थी। शंकर मालिनी को बुलाता है और कहता है चलो अंदर कोर्टयार्ड के। मालिनी देखती है कि वो बिल्ली रो रही थी। Bholu is Minu's cow. Minu takes Bholi to the field to graze daily. One day a speeding scooter hit Bholi and hurt her leg. The wound was bleeding heavily. भोली है वो मीनू की गाय है। मीनू उसे हर रोज़ खेत में घास चराने ले जाता है। एक दिन उसे अचानक से एक स्कूटर उसके पैर में ठोक देता है तो भोले के पैर में चोट लगती है और उसके पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है। The Queen's Garden. The gardener has bought mangoes from the Queen's garden. So many mangoes, good, Your Majesty. They would have been double the amount if the birds had not eaten them. What did you say? The birds have eaten the mangoes? Why did you allow the birds into the garden? Please forgive me. I will not let any bird come into the garden. Fewer mangoes than last year. Why did you not stop the birds from entering the garden? I stopped them, Your Majesty. I did not let a single bird enter. But this year the insects have eaten the mangoes. If there had been birds, then they would have eaten the insects. We would not have lost so many mangoes. एक गार्डनर था। वो अपनी रानी के लिए अपने गार्डन में से मैंगोज ले जाता है और रानी को देता है। तो रानी कहती है मैंगोज तो अच्छे हैं पर बहुत ही कम है। तो गार्डनर कहता है मैजेस्टी ये ज़्यादा होते अगर वहाँ पर पंछियाँ ना होती और वो पंछियाँ उन मैंगोज को खाती नहीं। तो रानी बोलती हैं तो तूने पंछियों को क्यों आने दिया और क्यों उसे आम खाने दिया? तो गार्डनर कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार उनको आने नहीं दूंगा। जब दूसरे दिन वो जाता है, दूसरे साल वहाँ पर जाता है तो रानी कहती है ये कैसे आम हैं, ये तो सड़े हुए हैं। तुम पंछियों को क्यों रोकते नहीं हो गार्डन में से आने के लिए?
तो वो कहता मैंने उन्हें तो रोका था, मैंने एक भी पंछियों को आने नहीं दिया, पर तो रानी कहती है इस साल भी कम क्यों आम है, क्या इसे पंछियों ने खाया है? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने इस बार तो पंछियों को आने नहीं दिया, पर इस बार उनको कीड़ों ने खाया है। अगर पंछियाँ होती तो वो इन कीड़ों को खा देती और एक आम सड़ते नहीं और हमें भले कम मिलते पर अच्छे आम मिलते, क्योंकि पंछियों उन कीड़ों को खा जाती। इसका ये मतलब होता है कि जानवर भी हमें काम आते हैं।